Good morning students. Today we will start broken images from here. It means from page number 22 to 7. Actually, let me confess, if I had foreseen how many people I would upset by writing in English, I really would not have committed that folly. Now she is confessing about it, that she has written in English, but really it would not have committed that of folly of her. So now she is saying कि भाई इसमें कोई, मैं बहुत सारे लोगों को अपसेट कर दी हूँ इस नॉवल को लिखकर इंग्लिश में, बट मैंने ये कोई मूर्खता नहीं की. इंटेलेक्चुअल्स whom I respected, writers who were gurus to me, friends who I thought would pat me on my back and share my delight, they are all suddenly breathing fire. Now she is telling about the friends and the gurus, it means teachers, who support her very much, and friends also who patted her, but they suddenly against of her. अब वो सबके सब उसके अगेंस्ट में हो गए हैं. ब्रीथिंग फायर का मतलब अगेंस्ट में होना. हाउ डेयर आई राइट इन इंग्लिश एंड बिट्रे कन्नड़. नाउ दे आर फीलिंग दैट आई हैव रिटन इन इंग्लिश एंड आई बिट्रे टू कन्नड़. मैंने क्या किया, कन्नड़ को बिट्रे किया और मैं इंग्लिश में लिखने लगी. बिट्रे यानी धोखा देना. द आंसर इज सिंपल. इफ देयर वॉज बिट्रेल, it was not a matter of consciousness. Now betray, the answer is simple, यानी धोखा देना सिंपल सा आंसर है. If there was betrayal, अगर धोखे की बात करें तो it was not a matter of conscious choice. ये मैटर कोई conscious choice का नहीं है. I wrote the, ऐसा मैं conscious नहीं हूँ इंग्लिश के लिए. I wrote the novel in English because it burst out in English. मैंने I have written this novel because of this burst out, it means come out thoroughly from our mind and heart, easily flow number of words in English. That is why I have written in English. She is saying here, it surprised even me. I couldn't understand why it was all coming out in English. Now it is surprised to the writer also, because of the number of words easily come from his heart and mind in English. That is why she was writing in English. I couldn't understand why it was all coming out in English, but it did, but it was, and that's all. There is no other explanation. कोई और explanation नहीं दे सकती. यही है सिंपल सी बात कि मैंने इंग्लिश में लिखा. What baffles me, actually, let me confess, hurts me, as why our intellectuals can grasp this simple fact. I have been accused of writing for foreign readers, accused as though I had committed a crime. Now, what baffles me actually, although I was also baffled, but it's stopped me and it's make me confessing character, and let me confess about this, hurts me, as why our intellectuals cannot grasp this simple fact. If the person who are full of intelligence and the person who is intellectual and cannot grasp this simple fact, it is very simple that I have written in English. I have been accused of writing for foreign readers. It has been accused on me that I am writing for the foreign readers only, because of I am writing in English. A writer seeks audience where she or he can find them. It means wherever I will get writer, then wherever it means, if I have got writer there in England, in foreign country, that is readers in English in England and foreign countries, that is why I have written in English. देखो बच्चों, वो ये कहना चाह रही हैं कि a writer seeks audience. मेन बात होती है कि राइटर क्या सीख करता है, ऑडियंस को, where she or he can find them, जो कि जहां मिलेंगे उनको कैच करेगा.
That is why she has written in English. My British publishers said to me, British publishers ने मुझसे कहा, we like your book because it's so Indian. And British publishers का इसको accept करने का कारण था कि although I have written in English, but it was related with the Indian mentality. Okay, so we receive any number of manuscripts from India, but they are all written with the Western reader in view. We receive any number of manuscript from India. यानी मैंने इंडिया से रिसीव किया, बट दे आर ऑल रिटन द वेस्टर्न रीडर इन व्यूज. यानी उन लोगों ने कहा कि मैंने इंडिया के लोगों से मतलब बुक्स ली, रिसीव किया, बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट्स इंडिया के लोगों से लिया, बट वो पूरी तरह से वेस्टर्न रीडर्स से इन्फ्लुएंस्ड था. बट आपका जो मटेरियल था वो इंडियन मेंटालिटी या इंडियन थिंग्स से रिलेटेड था. दैट इज व्हाई आई हैव सेलेक्टेड. योर नॉवल हैज अ जेन्युइन इंडियन फील. और तुम्हारी नॉवल जो है उसमें एक इंडियन फील दिखाई दे रहा है. ओके सो नाउ हेयर इज इंडियन फील. ओके, इसीलिए मैं योर नॉवल हैज द जेन्युइन इंडियन फील. दैट इज व्हाई आई लाइक इट. ओके, laughs, हंसती है. But who listened here? Who listens here? A Pandit, for instance, had stated that no Indian writer can express herself or himself honestly in English. But who listens here? लेकिन यहाँ कौन सुनता है? A Pandit, for instance, एक पंडित, एक विद्वान व्यक्ति has stated, कहता है कि no Indian writer can express herself or himself honestly in English. कि कोई भी इंडियन राइटर अपने आप को ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकता इंग्लिश में. फॉर इंडियन राइटर्स इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी. और वो ये भी कहते हैं कि इंग्लिश जो है इंडियन राइटर्स के लिए मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी है. यानी वो डिसऑनेस्ट हैं अगर वो इंग्लिश में लिख रहे हैं. दे आर नॉट कैपेबल टू राइट. नाउ ऑफ कोर्स वन कुड ऑल्सो आस्क हाउ मेनी कन्नड़ राइटर्स आर ऑनेस्ट इन व्हाट दे राइट इन कन्नड़. एंड वास्तव में वन कुड आस्क हाउ मैनी कन्नड़ राइटर्स, कितने कन्नड़ राइटर्स हैं आर ऑनेस्ट इन व्हाट दे राइट इन कन्नड़, जो कुछ भी वो कन्नड़ में लिख रहे हैं उसके प्रति. बट इफ यू डिड दैट यू वुड बी इमीडिएटली कंडेम्ड एज अ ट्रेटर. लेकिन तुम अगर खुद ऐसा करोगे तो तुरंत तुम पर एक आरोप लगा दिया जाता है, कहेगा ट्रेटर होने का, गद्दार होने का. यू कॉन्ट विन, तुम जीत नहीं सकते. रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल साहित्य अकादमी, द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, यानी जो प्रेसिडेंट था सेंट्रल साहित्य अकादमी का, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स जो कहलाती है, हु शैल रिमेन नेमलेस, डिक्लेयर्ड दैट, जो अभी भी नेमलेस होगा मतलब बताना नहीं चाह रही है, डिक्लेयर्ड दैट, उसने कहा इंडियन हु राइट इन इंग्लिश डू सो इन ऑर्डर टू मेक मनी. वे लोग जो इंग्लिश में लिखते हैं they always want to earn money, पैसा ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं. That's why writing in English they confess their complexity and the global consumer market economy. वो कहते हैं कि that by writing in English, उनका जो इंग्लिश में लिखने का कारण है, they confess their complicity in the global consumer market economy. वो कहाँ पर यूज करना चाहते हैं अपने आप को? वो ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इकोनॉमी में अपने आप को इंक्लूड करना चाहते हैं, वहां पर पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं. दैट इज व्हाई दे राइट इन इंग्लिश. वो इंग्लिश में लिखते हैं. ही ऑफ कोर्स स्पोक इन इंग्लिश, वह ऑफ कोर्स यानी वास्तव में इंग्लिश में बोलते हैं. स्पीकिंग इन इंग्लिश एज यू नो गिव्स यू द अथॉरिटी टू मेक ऑराकुलर प्रोनाउंसमेंट ऑन इंडियन लिटरेचर्स एंड लैंग्वेजेस. देखिए, यू द अथॉरिटी यानी ये तुम्हें पावर देता है स्पीकिंग इन इंग्लिश टू मेक ऑराकुलर प्रोनाउंसमेंट. ऑराकुलर प्रोनाउंसमेंट का मतलब एवरीवेयर, जो तुम्हारा प्रोनाउंसमेंट होता है ऑन इंडियन लिटरेचर में एंड लैंग्वेजेस में,
उसमें आपकी इंपॉर्टेंस शो होती है। बट माई रिस्पॉन्स टू द चार्ज दैट आई राइट इन इंग्लिश फॉर मनी, और मुझ पर ये चार्ज लगाया गया, ये आरोप लगाया, एक्यूज किया गया इस बात के लिए कि आई राइट इन इंग्लिश फॉर मनी, मैंने पैसे के लिए इंग्लिश में लिखा। वाई नॉट, इजंट दैट अ गुड एनफ रीजन, क्यों नहीं, यह भी एक एनफ रीजन है। वुड यू लाइक टू सी दैट रॉयल्टीज आई अर्न व्हेन आई रोट इन कन्नड़, क्या तुम देखना चाहोगे जो रॉयल्टीज मुझे मिलती थी जब मैं कन्नड़ में लिखती थी। ओके, पॉज। Yet the accusation hides or perhaps reveals a grim anxiety, as is clear from the dictum of the president of the academy. Yet the accusation hides or perhaps reveals, हालांकि ये जो दोषारोपण है, hides मतलब छिपा लिया गया, और perhaps reveals या फिर शायद ये रिवील करता है, वर्णित करता है, अग्रिम एनेक्सिटी, यानी लोगों में ये एनेक्सिटी पैदा करता है, चिंता पैदा करता है। as is clear from the dictum of the president of the academy, what is as issue is not creativity but money। देखिए, as is clear from the dictum of the president, जो प्रेसिडेंट का व्यू है, अकादमी के प्रेसिडेंट का व्यू था कि उनका मतलब ये था कि व्हाट इज एज इशू, एक ही इशू है, नॉट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, बट मनी, हम लोग पैसे के लिए इंग्लिश में लिखते हैं। व्हाट हेट्स एवरीवन एंड द आई इज द मनी राइटर इन इंग्लिश कैन अर्न, और हर व्यक्ति को एक ही बात हिट करती है, क्या आंखों में खटकती है, क्या कि राइटर इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखता है, कैन अर्न मोर मनी। द एडवांस आई रिसीव्ड फॉर माई नॉवल, जो मैंने अपने नॉवल के लिए एडवांस मिला है जो मुझे, द एडवांस ओनली माइंड यू हेल्ड मी रिजाइन माई जॉब, यानी इतना सारा एडवांस मिला है कि मैं अपने जॉब से रिजाइन दे दूं, मैंने अपने जॉब से रिजाइन दे दिया है। एंड कंसंट्रेट ऑन राइटिंग, और जॉब को छोड़कर मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट हो गई हूँ, किस पर कंसंट्रेट हो गई हूँ, राइटिंग पर। ऑफ कोर्स इट इज अ कॉज फॉर जेलसी, मे बी इट मे बी द कॉज ऑफ जेलसी फॉर अदर पर्सन, हो सकता है लोगों को इस बात से जेलस हो गया हो। हैविंग स्ट्रगल्ड इन कन्नड़ आई कैन अंडरस्टैंड दैट, जब तक मैंने कन्नड़ में स्ट्रगल किया, आई वॉज राइटिंग इन कन्नड़, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं ये बात को समझ चुकी हूँ। कन्नड़ प्रोवर्ब सेज, कन्नड़ की एक प्रोवर्ब कहती है, a response is good but a meaningful response is better। देखिए, एक रिस्पॉन्स अच्छा होता है, लेकिन एक अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल रिस्पॉन्स जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है। यहाँ पर मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, ओके। अर्थपूर्ण इज द मीनिंग हेयर टू, द कन्नड़ वर्ड फॉर द मीनिंग इज अर्थ विच ऑल्सो मीन्स मनी, अर्थ का मतलब मनी भी होता है। एंड ऑफ कोर्स फेम, पब्लिसिटी, ग्लैमर, पावर, मनी, सभी कोई इसको चाहता है, हंसती है। लेट्स मी लीव इट दैट, उसने कहा ठीक है, ये मुझे छोड़ने दो। That's by writing in English they confess the complicity in the global consumer market economy। he of course spoken English, और वो इंग्लिश में ही ऑफ कोर्स स्पोकन इंग्लिश, वो वास्तव में इंग्लिश में बोलती थी। स्पीकिंग इन इंग्लिश एज यू नो गिव्स you the authority to make oracular pronouncement on Indian literatures and languages, but by response to the charge that I write in English for money, would, why not, isn't that a good enough reason? Would you like see what royalties I earn when I wrote in Kannada? Yet the accusation hides or perhaps reveals a grim anxiety, as is clear from the dictum of the president, the academy. And what is issue? Not creativity but money. What hits everyone in the eye of the eye is the money a writer in English can earn. The advance I received for my novel, the advance only, mind you, helped me resign from my job
and concentrate on writing. Of course, as a cause for jealousy, having struggled in Kannada, I can understand that a Kannada proverb says a response is good, but a meaningful response is better. So meaningful, it means arthapurna. Now she is laughing and after it let me leave at that. और उसने कहा अब इस बात को मुझे छोड़ देना चाहिए. The second question everyone asks, हर कोई पूछता है. Second question is about the book itself. ये भी book के बारे में. Thank God, how can you seem so strong and active? I was a long jump athlete in college, though of course no Anju Bobby George. How could you so vividly recreate the inner life of a person confined to bed all her time? उसने कहा तो आप तो एथलीट थे ना. चलो अंजू और बॉबी के जैसे नहीं थे, अंजू बॉबी जॉर्ज के जैसे, लेकिन फिर भी एक एथलीट थे. तो तुम एक ऐसे व्यक्ति से कितना इतने कन्फाइंड क्यों हो सकते हो जिसको राइटिंग में तुमने प्लेस दे दिया, नॉवल राइटिंग में प्लेस दे दिया, विच इज कन्फाइंड टू बेड ऑल हर टाइम. यानी पूरे समय जो बेड पर ही रहती है उसको क्यों तुमने यहाँ पर अपनी राइटिंग में प्लेस दिया. हाउ कैन अ हेल्दी आउटडोर वुमेन बी सो एम्पैथिक टू द इमोशनल वर्ल्ड ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन. वो कहते हैं कि हाउ अ हेल्दी आउटडोर वुमेन, जो हेल्दी आउटडोर वुमेन होती है वो कैसे इतना एम्पैथेटिक हो सकती है, इमोशनल वर्ल्ड में जा सकती है डिसेबल्ड पर्सन के. वेल इट इज सैड but I owe that my younger sister Malini. Now she accepted that I am very sorry for her. It means I was attracted with the younger sister Malini. That is why I have given place to her in my novel. She was physically challenged. वो physically challenged थी, suffered from what is technically called meningioma yellow cell. It means meningioma yellow cell is the name of disease. The upper part of her body was perfectly normal. उसका जो upper part था body का वो perfectly normal था. Below the breast the nervous system was damaged, okay, and completely dysfunctional था उसका lower part. A series of operations have been taken. बहुत सारे ऑपरेशंस करवाए गए उसकी बॉडी के, which started soon after her birth, जो कि उसके बर्थ के बाद स्टार्ट हो गए थे. reduced her existence to misery, और उन्होंने रिड्यूस किया, मतलब reduced her existence to misery, यानी कि उसके कष्ट को दूर करने के लिए she spent her entire life confined to the wheelchair. फिर भी उसने अपना पूरा जीवन व्हील चेयर पर बिताया. 6 years ago my parents died. और 6 वर्ष पहले मेरे पेरेंट्स एक्सपायर कर गए. She came to stay with us. वो हमारे पास रहने लगी. In our house in जयनगर. कहाँ पर? जयनगर में. I nursed her. मैंने उसकी पूरी तरह से नर्सिंग मतलब पूरी सेवा की. During the last few months, पिछले कुछ महीनों से it was quite clear she didn't have much time left. ये बात निश्चित रूप से सिंपल थी. क्लियरली वी नो कि वो अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी. आई एम चाइल्डलेस, और हम चाइल्डलेस थे, एंड शी बिकेम माई चाइल्ड, और वो हमारी बच्ची बन गई. ट्रूली द बुक इज अबाउट हर. वास्तव में ये बुक जो है उसके बारे में है. आई हैव डेडिकेटेड इट टू हर मेमोरी. मैंने उसकी मेमोरी को डेडिकेट किया है इस बुक को. शी डाइड लास्ट ईयर, जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर द बुक कैम आउट. और ये कुछ महीने पहले ही मेरी सिस्टर जी थी जो कि एक्सपायर हो चुकी है, और उसके बाद ये बुक पब्लिश्ड हुई है. आई हैव ट्राई टू रिलाइव वॉट आई लर्न अबाउट हर इमोशनल लाइफ. आई हैव ट्राई टू रिलाइव, ये बात मैं ट्राई कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ. रिलाइव वॉट आई लर्न अबाउट हर इमोशनल लाइफ, जो कुछ भी हमने उसके इमोशनल लाइफ के बारे में सुना. एज आई नर्स्ड हर, टेंडेड टू हर, watched helplessly as she floated into death. I nursed her, मैंने उसकी सेवा की. Tended to her, बहुत मासूमियत से, वो मासूम थी, कोमल थी.
watched helplessly as she floated into death. और helplessly वो मुझे वॉच कर रही थी, पर I was unable to help her, और इस तरह से वो उसकी डेथ हो गई. She floated to death is means वो डेथ की तरफ बढ़ गई, अग्रसित हो गई. I miss her, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ. I miss my beautiful gentle sister, मेरी प्यारी सी सिस्टर को बहुत मिस करती हूँ. Her eyes motion, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. She is only character in the novel drawn from my life, केवल एक ही कैरेक्टर है जिसको कि मेरी लाइफ से लिया गया है. The other characters and plot are entirely fictional, और जो बाकी का पार्ट है वो पूरी तरह से प्लॉट भी, सब कुछ कैरेक्टर भी, सब कुछ फिक्शनल है. ओके, इन्वेंटेड. और पॉज, रुक जाती है. I must here acknowledge the support I received from one person while I wrote the novel, my husband, Pramod Murthy. I must here acknowledge the support. मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस नॉवल को लिखने में. While I wrote the novel, my husband, Pramod Murthy. Okay, very supported and good natured. I was working full time as a lecturer then. तब मैं फुल टाइम लेक्चरर की तरह वर्क किया करती थी, कॉलेज कॉलेज के काम. एंड होम वॉज फुल ऑफ हर मेमोरीज, और घर जो था उसकी मेमोरीज से भरा हुआ था, मालिनी की मेमोरीज से. एंड देयर वॉज आई स्टडी सडनली राइटिंग इन इंग्लिश, और अचानक से मैं इंग्लिश में लिखने लगी. फ्लाउंडरिंग, इट मीन्स कमिंग फ्रॉम माई हार्ट ऑटोमेटिकली एंड आई सिंक इन इट, और मैं उसमें डूब गई. I was utterly clueless. Because of I was disturbed. So that is why there were moments when I broke down, when I felt couldn't go on. जब भी मैंने देखा कि I was not capable to write again, and फिर मैं पूरी तरह से टूट गई थी. But he was always there at my side. My husband always support me. Pramod Murthy always support me, encouraging me and prodding me on. It means again pursued me to write novel. And without him, I would never have completed the novel. उनके बिना मैं कभी भी novel complete नहीं कर सकती थी. Thank you Pramod. And the overhead light turn yellow. और अब जो उनके ऊपर सिर पर जो लाइट लगी हुई थी येलो कलर की, टर्न्स बदल जाती है. वेल दैट्स इट, आई हैव कमिटेड द कार्डिनल सिन ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश. मैंने एक अपराध किया है रिलेटेड टू द हार्ट ऑफ द पीपल. एंड व्हाट वाज इट? इट वाज राइट इन इंग्लिश. लाफ्स, हंसती है. देयर इज नो प्रायश्चित, और इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है. नो एब्सोल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं उसका. And but fortunately the film you are about to see in Kannada. लेकिन fortunately एक चीज़ है कि जो फिल्म तुम देखने वाले हो आप लोग, वो कन्नड़ में है. That makes me very happy, जिससे मैं बहुत खुशी. After all, the family I have written about Kannada, about is Kannada, जो मेरी पूरी फैमिली है तो वो क्या है? कन्नड़. और मैंने उसके लिए ही ये लिखी है. I am a कन्नड़ राइटर माई सेल्फ. मैं खुद एक कन्नड़ राइटर हूँ. Born to the language and civilization, जिस सिविलाइजेशन में, सभ्यता में, और जिस लैंग्वेज में मैंने जन्म लिया है. एंड प्राउड ऑफ इट, मैं उस पर गर्व करती हूँ, प्राउड करती हूँ. द कन्नड़ रियलिटी आई रिसीव्ड कन्विंस्ड इन इंग्लिश हैज बीन ट्रांसलेटेड बैक इनटू कन्नड़. कन्नड़ रियलिटी, कन्नड़ जो है रियलिटी में, आई कंसीव्ड इन इंग्लिश. इंग्लिश में ही मैंने उसको कंसीव किया. हैज बीन ट्रांसलेटेड बैक इनटू कन्नड़, और उसको वापस से ट्रांसलेट किया है कन्नड़ में टू परफेक्शन बाय द डायरेक्टर. और उसका परफेक्शन भी किया है डायरेक्टर के द्वारा, और डायरेक्टर ने उसका परफेक्शन भी किया है. आई कुडंट हैव डन इट बेटर, मैं इससे और ज़्यादा बेटर नहीं कर सकती थी. माई थैंक्स टू द कास्ट एंड द क्रू, उस पूरे कास्ट और क्रू के लिए क्रू को मैं धन्यवाद देती हूँ. एंड ऑफ कोर्स वास्तव में CTV वेल एंजॉय द टेलीफिल्म, और सबसे ज़्यादा मैं CTV चैनल को एंड एंजॉय द टेलीफिल्म नाउ. गुड नाइट, नमस्कार. दैट्स ऑल.
next part, next page 230 we will start tomorrow. Okay, thank you, have a nice day all of you.